So, question number 6, assignment 1. ये हमारे पास दिया गया है 9 numbers are written in reverse in ascending order. The middle number is average of the 9 numbers. अब इसने ना इसके बाद दिया था एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 लार्जर नंबर इज 68, राइट। अभी क्या है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दे आर प्लेस्ड इक्वली, मतलब देयर इज एन इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ we take the odd number of consecutive numbers, the average is the middlemost number. तो उस केस में हम लोगों ने कुछ नंबर्स की बात की थी। हम लोगों ने बात किया था इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स की बात की थी। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कई बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर्स कुछ इस तरह से लिखे गए हैं 64, 69, 74, 79 एंड 84। अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे, इफ यू सी, तो ये इनका गैप बराबर क्या है, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड दे आर हैविंग द सेम गैप, मींस दे आर इन एपी। अगर ऐसा भी होगा तो भी हमारा एवरेज जो है वो मिडल मोस्ट नंबर ही होगा इन दैट केस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेचुरल नंबर्स नहीं भी हैं, ऑड नंबर्स नहीं भी हैं, इवन नंबर्स नहीं भी हैं, और फिर भी गैप इनका सेम है, even then it will be what, it will be this, the middlemost number. अभी हम बात करते हैं 9 नंबर्स की, ठीक है। ऑफ कोर्स 9 नंबर्स में जो मिडल मोस्ट नंबर है वो तो हमारे पास एवरेज होगा ही होगा इफ दे आर हैविंग द सेम गैप एज वी कुड सी इन दिस केस। अब इसने ना हमें बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, ध्यान से समझिएगा। हम इसको ऐसे मानते हैं, हमारे पास टोटल 9 नंबर्स हैं। आप, मैं सिर्फ नंबर्स दिख रहा हूँ अभी, ठीक है। यू जस्ट कंसिडर दिस एज पोजीशन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, देन 6 7 8 एंड 9। If you talk about first 5 numbers, these will be first 5 numbers. If you talk about last 5 numbers, these will be last 5 numbers, right? Now if we talk about, ध्यान से सुनना भी, if we talk about the first 5 numbers, the average is the middlemost number, it will be the third number, and that third number is given to us as 68. And if we talk about the last 5 numbers, then 7 number is the middlemost number, and that is given to us as 44. Now अब हमारे पास जो पूरे ग्रुप का जो एवरेज होगा वो वही होगा जो इन दोनों का एवरेज होगा। So you have to take the average of 68 and 44. It is going to be 56. So 56 is the average of these two numbers, and that is actually the fifth number we have got, which is the average of. अगर हम लोग बात करेंगे 3 4 5 6 7, so middlemost number is always the average of the first and the last, second and the second last, third and the third last, and so on. So it will be 56, and therefore total sum is 56 into 9. That comes to be 504. दोबारा से आप देखेंगे तो हम लोगों ने, ये थोड़ा सा टेक्निकल है ऑफ कोर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर इज द मिडल मोस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट 5 numbers. So 68 is the average, it means third number is the 68, and seventh number is the middlemost number of last 5 numbers, and that value is 44. Now if we take the case of third, fourth, fifth, sixth and seventh number, third, fourth, fifth, sixth and seventh number,
average is also the middlemost number. In this case, the fifth number is the average. And what that average is, in that case, we will be taking the average of these two numbers, which is already with us. These two numbers are 68 and 44. So that is why we have got the average of 68 and 44 is 68 plus 44 upon 2. It gives us 56. So we have got from here, we have got fifth number as 56. And since the average is 56 at fifth number we have got, so हमारे पास total जो sum आ जाएगा वो 504 आ जाएगा. So that will be the answer for. So इसी का ही क्वेश्चन नंबर 7th है. देखो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं. इसने बोला a person invested part of 45,000 at 4% and the rest at 6%. If his annual income from both are equal, then what is the average rate of interest? Okay. देखो इसको करने के ना दो अलग अलग तरीके हैं. एक तरीका तो है, दो तरह की चीजों को मिला रहा हूं. ठीक है, तो आप एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं. देखें सिंपली कि भाई एक पार्ट है 45,000 को आप डिवाइड करिए दो पार्ट्स में. योर फर्स्ट पार्ट इज x, ऑफ कोर्स योर सेकंड पार्ट इज 45,000 माइनस x. नाउ if you talk about this x, so 4% of x is equals to 6% of 45,000 minus x. आप ये 100 काट दीजिए. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ये आपके पास बन जाएगा. इफ यू हैव टू डू इट, आई विल बी डूइंग इट लाइक दिस. 2x is equals to 3 into 45,000 minus 3x. 5x is equals to 3 into 45,000. X is equals to 3 into 45,000 upon 5. That will gives you. So x is equals to 27,000. Y is equals to 18,000. Oh, sorry, second part. Y nahi. I'll be taking it as 45,000. Second part. Second part means 45,000 minus x. आप क्या करें? If you see, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट इज 4% of 27,000. That is 1080 into 2, 2160. So 2160 is the total interest, and then this 2160 you have to check it on 45,000. How much percentage is it is actually? This and this gone. This is 5, 9 से जाएगा, ये 24 आ जाएगा, and you will be getting 4.8 as the answer. This is one way of doing the things, right? It is one way of doing the things. So you have got this as 4.8. और ये थोड़ा सा लंबा है और देखने वाली बात है. अब हम इसको ना एक अप्रोच दूसरा चेंज करते हैं. हमारे पास हो क्या रहा था? हमारे पास देयर वर टू पार्ट्स. अब इसको आप देखेंगे, ये आप लोग सभी लोग बड़े ध्यान से फोकस करेंगे. फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, राइट? फर्स्ट पार्ट इज, एक को 6% पे दिया जा रहा है, एक को 4% पे दिया जा रहा है, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें x% मिल रहा है. अभी हमें नहीं पता ये x% क्या है, बट
एक चीज है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास आएगा, ध्यान से देखना, 6 - x एंड x - 4, ये जो रेशियोज हैं इट शुड बी इन द रेशियो 6:4. सो x - 4 अपॉन 6 - x should be in the ratio 6:4. You just solve it. This is 3 and 2. ये आपके पास आ जाएगा 2x - 8 is equals to 18 minus 12 and just a second. तो यहाँ से हमारा आंसर आना चाहिए, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी चेक द आंसर। तो आपके पास ना ये जो है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हमारे पास वैसे तो ये जो है ये हमें बताता है कि ये 3:2 की रेशियो में मिक्स्ड है। x - 4 एंड 6 - x आर इन द रेशियो 3:2, राइट। इसमें पहला वाला पार्ट जो है ये 6% वाला है और ये 4% वाला है, लेकिन ये इक्वल तभी होगा जब ये इसकी रिवर्स रेशियो में आएगा, 2:3 की रेशियो में आएगा। देखें, ये हमारे पास ये जो परसेंटेज है ये 6:4 की रेशियो में, ये परसेंटेज है, ये रेट परसेंट है बेसिकली, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। और इसको ये जो दो रेशियोज आई हैं ये बेसिकली ये इक्वल तभी होगा जब ये x - 4 और 6 - x इस केस में इनकी रिवर्स रेशियो में होगा, यानी 4:6 या 2:3 की रेशियो में होगा। सो दिस विल बी 3x - 12 इज इक्वल्स टू 12 - 2x आ जाएगा ये, that will be 5x equals to 24 and x is equals to 4.8. So you are having both the methods of doing the things. Yes, इसको एक बार आपको अच्छे से समझना जरूर पड़ेगा, लेकिन आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दिस थिंग विल बी डन फॉर यू। एवरेज एवरेज स्पीड के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, और सपोज हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, बॉय goes from Delhi to Bombay or Delhi to Mumbai at 60 km/h and and comes back at 90 km/h. Find his average speed.
तो इस केस में हमारे पास हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो ये एवरेज स्पीड जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू S1 S1 का मतलब है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। दिस इज 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 60 प्लस 90। अब ये केस क्या है, ये इक्वल डिस्टेंसेस एट डिफरेंट स्पीड्स है, बिकॉज मुंबई टू जम्मू, मुंबई टू दिल्ली का डिस्टेंस एंड दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड सेम। सो इट इज 2 इंटू 60 इंटू 90। अगेन इफ यू सी, तो मैं कैलकुलेशंस को बड़ा ओपन करके रख रहा हूँ। इट्स 72 किलोमीटर पर आवर। बट एक क्वेश्चन ना ऐसे भी दिया जाता है, ये कई बार आया है कि एन एरोप्लेन flew over a square field and covered its all four sides at 100, 200, 300 एंड 400 किलोमीटर पर आवर, सभी किलोमीटर पर आवर में है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो इफ यू टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे भी अगेन 4 इक्वल डिस्टेंसेस एट 4 डिफरेंट स्पीड्स, है ना। इट इज 4 इक्वल डिस्टेंसेस एट 4 डिफरेंट स्पीड्स। तो हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन। अभी क्या है, जब हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था तो ये इसी से ही डिडक्ट हुआ हुआ है, ये हमारी पहले भी बात हुई है। बट यहाँ पे हम इसको इसी तरह से कर पाएंगे। 4 के लिए दिस इज द बेटर वे, तो हम इसको लिखेंगे 4 अपॉन 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 300 प्लस 1 अपॉन 400। तो दिस इज 4। एलसीएम हम लेंगे 1200। दिस इज 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, and that is equals to it is 25, and ये आ जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 25। ये इसलिए किया ताकि मैं कैलकुलेशंस डायरेक्टली ऐसे कर सकूं, and then this becomes 192 kilometer per hour. So this will be the answer for us, and इन दोनों केसेस में हमने यूज किया इक्वल डिस्टेंसेस इज कवर्ड एट डिफरेंट स्पीड्स। सो एवरेज स्पीड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैंडी गो थ्रू दिस
फिर आगे बात करता हूँ. So it is number 26 in assignment number 2. The question is, there were 40 students in a hostel. ठीक है, तो हमारे पास एक हॉस्टल में there were 40 students. If the number of students increases by 8, the expenses of the mess increases by rupees 48 per day, while the average expenditure per head diminishes by rupees 2. Find the original expenditure. तो कहते हैं कि जब 40 लोग थे तो एवरेज एक्सपेंडिचर जो था वो x था और टोटल एक्सपेंडिचर हम लोगों को मिल रहा था 40x. फिर क्या हुआ, कहता इफ व्हेन 8 स्टूडेंट्स वर एडेड, व्हेन 8 स्टूडेंट्स वर एडेड, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर था इट इंक्रीजेस बाय रुपीज 48 पर डे. तो 40x प्लस 48 हो गया. इसको हम n1 a1 और t1 ले लेते हैं और इसको तब t2 ले लेते हैं. तो t2 क्या बन गया, यानी टोटल क्या बन गया, द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाय रुपीज 48 पर डे. तो ये हमारे पास पहले 40x था, 40x प्लस 48 हो गया. एंड नंबर्स हमारे पास कितने आ गए, नंबर्स हमारे पास भी 40 प्लस 8 बन गए. पहले 40 लोग थे, अब 8 लोग और बढ़ गए, तो ये भी 48 हो गए. तो एवरेज इस केस में क्या होगा, एवरेज इस केस में होगा 40x प्लस 48 अपॉन 48. और कहता है कि ये जो एवरेज है, जब हमने ये एवरेज निकाली तो इट डिमिनिशेस बाय रुपीज 2, यानी पहले x एवरेज थी, अब x माइनस 2 होगी. दोबारा से समझते हैं इस बात को, फिर कैलकुलेशन करते हैं. ये बोलता है एक हॉस्टल में 40 लोग थे, राइट. तो उनका एवरेज एक्सपेंडिचर पर डे था रुपीज x, तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 40x. जब 8 लोग बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाय रुपीज 48 पर डे. वेयर एज उनका नंबर भी अगर हम देखेंगे तो वो भी 48 हो गया. और अब हमने जब एवरेज निकाला, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, इट बिकम्स x माइनस 2. तो यहां से हम लोग देखेंगे इट विल बी 40x प्लस 48 is equals to 48 into x minus 2. Let us solve it. 40x plus 48 is 48x minus 96. 48 plus 96 is 48x minus 48. 144 is equals to 8x. 18 is equals to x. 18 is equals to x का मतलब ये है कि हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर क्या था, लेकिन इसने हमसे पूछा व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे, original total expenditure is 40 into x, that is 40 into 18, and my answer will be 720. This is the answer for us. तो जी आप नोट करें, शाबाश इसको. The question is the average temperature of Monday, Tuesday and Wednesday was 40 degrees centigrade. This is question number 29. तो ये बोलता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब इन तीनों का जो टोटल होगा
वो 40 into 3 होगा, that is 120. And for Tuesday, Wednesday and Thursday, it's 41 into 3, यानी वो 123 होगा। अभी क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये जो ट्यूसडे एंड वेंसडे है ये दोनों ग्रुप्स में कॉमन है। टेम्परेचर में डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? एक जगह हमने मंडे लिया और दूसरी जगह हमने थर्सडे लिया, तो ये टोटल में इसलिए फर्क आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हेयर मंडे थर्सडे और मंडे का जो डिफरेंस है डेट इज 3, बिकॉज इसी की वजह से ये एक्स्ट्रा बन रहा है। अब ये बोलता है इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे was 32 degree. अब temperature on Thursday is 42 degree. What is the temperature on Monday? So it is 42 minus 3 is equals to Monday. That is 39. So this is the answer for us. ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30th. The mean temperature of Monday to Wednesday was 37 degree centigrade. हम लोग फिर से वही लिखेंगे, Monday plus Tuesday plus Wednesday is 37 into 3, that is equals to 111 degree. Whereas Tuesday to Thursday is 34. So Tuesday plus Wednesday plus Thursday, same बात है, is 34 into 2. 34 into 3, it's 102. अभी फिर से Tuesday and Wednesday दोनों में सेम है, so यहाँ पर फिर से हम लोग कहेंगे कि Thursday, अभी क्या है, Monday वाला जो है वो ज्यादा टेम्परेचर है और Thursday वाला कम है, तो इस बार Monday minus Thursday is 111 minus 102, that is 9. अब ये बोलता है इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 ऑफ द मंडे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे? कहता है, अब ध्यान से सुनना, ये बोलता है कि टेम्परेचर ऑन थर्सडे, हियर थर्सडे इज Thursday is 4/5 of Monday. So this implies that Monday is 5/4 of Thursday. अब बस आप इसमें मंडे का वैल्यू लगा दीजिए। So therefore हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/4 times Thursday minus Thursday is equals to 9. 5 times Thursday minus 4 times Thursday upon 4 is equals to 9. And then this becomes Thursday का temperature हमें मिल रहा है 36 degree. So this is the answer. Right? तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो you have seen कि what we have done in these two questions. तो आज हम इतने रखेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कल कंटिन्यू करते हैं, और विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, एंड जो आपके डाउट्स रहेंगे वी विल क्लियर दोस डाउट्स आल्सो। सो आज आप इसको अच्छे से देखिएगा, जो आज हमने पढ़ा इसको जस्ट गो थ्रू दैट। So bye for today. Take care. God bless you and Jai Hind. Thanks, sir.